Hello, friends. Welcome back again to a new story. The name of today's story is Learn to Appreciate. Here you can see in the title. So please stay with me patiently. And at first, I will try to read it out loudly. And so please go through it properly. And then I'll try to discuss it. I'll try to explain it line by line, even word by word. So बने रहिए हमारे साथ and I'll try to help you to understand the story properly. तो फर्स्ट हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दें हमारे साथ पढ़े नाम जो है लर्न टू अप्रिशिएट वंस अपॉन ए टाइम there was a man who was very helpful, kind hearted, and generous. He was a man who will help someone without asking anything to pay him back. He will help someone because he wants to and he loves to. One day, while walking into a dusty road, this man saw a purse, so he picked it up and noticed that the purse was empty. Suddenly, a woman with a policeman shows up and gets him arrested. The woman kept on asking where did he hide her money, but the man replied, "It was empty when I found it, ma'am." The woman yelled at him, "Please give it back. It's for my son's school fees." The man noticed that the woman really felt sad, so he handled all his money. He could say that the woman was a single mother. The man said, "Take these, sorry for the inconvenience." The woman left and a policeman held the man for further questioning. The woman was very happy, but when she counted her money later on, it was doubled. She was shocked. One day, while the woman was going to pay her son's school fees towards the school, she noticed that some skinny man was walking behind her. She thought that he may rob her. So she approached a policeman standing nearby. He was the same policeman who she took along to inquire about her purse. The woman told him about the man following her, but suddenly they saw that man collapsing. They ran at him and saw that he was the same man whom they arrested a few days back for stealing a purse. He looked very weak and the woman was confused. The policeman said to the woman, "He didn't return your money. He gave you his money that day. He wasn't the thief, but hearing about your son's school fees, he felt sad and gave you his money." Later, they helped the man stand up, and the man told the woman, "Please go ahead and pay your son's school fees. I saw you and followed you to be sure that no one steals your son's school fees." The woman was speechless. Moral: life gives you strange experiences. Sometimes it shocks you, and sometimes it may surprise you. We end up making wrong judgments or mistakes in our anger, desperation, and frustration. However, when you get a second chance, correct your mistakes and return the favor. Be kind and generous. Learn to appreciate what you are given. तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम उसको लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो समझने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए एंड जो वोकेबलरीज है वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो स्टे विथ मी पेशेंटली एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे को सपोर्ट करें उस नॉलेज को स्प्रेड करने में। तो पहले लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। लर्न टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब होना, किसी का कदर करना, तारीफ करना, महत्व देना। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भलाई की है तो उसका मतलब तारीफ करना। लर्न मतलब सीखना। तो लर्न टू अप्रिशिएट हो गया कि अप्रिशिएट करना सीखो। अप्रिशिएट करना सीखो, किसी का महत्व देना, तारीफ करना सीखो। फर्स्ट लाइन जो हमारा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार क्या हुआ, देयर वाज ए मैन। यहाँ एक आदमी था, एक आदमी था, ऐसे स्टोरी स्टार्ट होता है हमारा। हु वाज वेरी हेल्पफुल। वो क्या था? हु वाज वेरी हेल्पफुल। वो बहुत अच्छा एक हेल्पफुल आदमी था, वो लोगों का मदद करता था। काइंड हार्टेड था, बहुत अच्छा दिल वाला आदमी था। काइंड हार्टेड था, दयावान था, दयालु था। एंड जेनरस था, जेनरस भी दयालु है, दानवीर है, जो ऐसा अच्छा था, लोगों को कुछ भी हेल्प कर देता था, कोई भी होता। ही वॉज अ मैन, वो कैसा मैन था? हु विल हेल्प, वो किसी को हेल्प कर देता है। किसी को हेल्प कर देगा, क्यों? विदाउट आस्किंग एनीथिंग टू पे हिम बैक,
विदाउट आस्किंग मतलब किसी को बिना पूछे, विदाउट आस्किंग बिना पूछे एनीथिंग टू पे हिम बैक, कि उसको कुछ बैक करे, उसको कुछ लौटाए, उसका हेल्प के बदला कुछ लौटाए, उसे पूछने के बिना ही वो किसी को हेल्प कर देता है। मतलब वो किसी को बिना कुछ पूछे ही हेल्प कर देता है। हेल्प करने के बाद ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो लोग मुझे भी कुछ देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काइंड हार्टेड है। उसके बाद क्या हुआ, ही विल हेल्प समवन बिकॉज, फिर आया ही विल हेल्प समवन, वो किसी को हेल्प कर देगा, किस लिए, बिकॉज ही वांट्स, बिकॉज वह चाहता है हेल्प करना, मदद करना चाहता है, इसलिए हेल्प करता है। एंड ही लव्स टू, एंड वो मतलब लोगों को लव करता है, इसलिए वो हेल्प कर लेता है। उसके बाद क्या हो गया, वन डे वाइल वॉकिंग, वन डे वो जब वॉकिंग चल के जा रहा था, पैदल चल के जा रहा था, इनटू ए डस्टी रोड, किस पे जा रहा था, इनटू ए डस्टी रोड, एक डस्टी रोड पे, डस्टी तो डस्ट वाला जो धूल भरे रोड सड़क होता है उसको डस्टी रोड कहा जाए। जब डस्टी रोड पर चल रहा था, पैदल चल के जा रहा था, दिस मैन, वही आदमी ने, सो ए पार्स, सो मतलब देखा, एक पार्स को देखा, पैसे की जो मनी पर्स होते हैं उसको देखा। सो ही पिक्ड इट अप, सो क्या कर लिया उसने, उस पर्स को उठा लिया, एंड नोटिस्ड, एंड देखा, दैट द पर्स वॉज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, वो पर्स क्या था, पर्स पूरा खाली था। सडनली, तो अचानक, वुमेन विद ए पुलिसमैन, अचानक एक औरत विद ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन के साथ शोज अप, दिखाई दिया यहाँ, एंड गेट्स हिम अरेस्टेड, एंड उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। तो जब उस पर्स को उठाया, पिक्ड इट अप मतलब उस पर्स को उठाया, एंड देखा कि वो पर्स खाली है। फिर अचानक एक वुमेन आई, एक औरत आई एक पुलिसमैन के साथ, एंड उसको अरेस्ट कर लिया, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, द वुमेन केप्ट ऑन आस्किंग, द वुमेन वो जो औरत थी, केप्ट ऑन आस्किंग मतलब उसको पूछ रही थी, उसको, उस आदमी को पूछ रही थी, वेयर डिड ही हाइड, हाइड मतलब छुपाना, वेयर मतलब कहाँ छुपाया, हर मनी उसकी पैसा, बट द मैन रिप्लाइड, बट उस आदमी ने रिप्लाई किया, इट वॉज एम्प्टी व्हेन आई फाउंड इट मैम, आदमी ने कहा इट वॉज एम्प्टी, ये खाली था, व्हेन आई फाउंड इट, जब मैं उसको पाया, मैम, मैम करके पुकारा है उस वुमेन को। तो वुमेन ने क्या किया, फर्स्ट जो लाइन है, द वुमेन केप्ट ऑन आस्किंग, उस औरत ने उस आदमी को पूछ रहा था, उस वुमेन ने उस आदमी को पूछ रही थी कि वेयर डिड ही हाइड, कि कहाँ छुपाया उसने, हर मानी उसकी मानी, उसके पैसा, बट द मैन रिप्लाइड, मैंने ने क्या कहा, इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था, व्हेन आई फाउंड इट, जब मैंने पाया, व्हेन आई फाउंड इट मीन्स क्या है, जब मैंने पाया मैम। द वुमेन यल्ड एट हिम, तो उस वुमेन ने उसको चिल्लाया, उस पर चिल्लाया, यल्ड मतलब चिल्लाना भी, गिड़गिड़ाना भी होता है कभी कभी, तो चिल्लाया, प्लीज़ गिव इट बैक, प्लीज़ क्या करो, मेरा पैसा मुझे लौटा दो, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। इट्स फॉर माई सन स्कूल फीस, ये पैसा किस लिए था, इट्स फॉर माई सन्स, मेरे बेटे का स्कूल फीस देने के लिए था। द मैन नोटिस, तो उस आदमी ने देखा, आदमी तो पहले ही जनरस था, दयालु था, काइंड हार्टेड था, उस आदमी ने देखा, दैट द वुमेन रियली फेल्ट सैड, देखा कि सच में यह औरत दुखी हो रही है, फेल्ट सैड मतलब दुख अनुभव कर रही है, दुखी हो रही है। सो ही हैंडेड ऑल हिज मनी, इसलिए उस आदमी ने क्या कर दिया, ही मतलब उस आदमी ने हैंडल्ड ऑल हिज मनी, उसके पास जितना पैसा था वही उस वुमेन को दे दिया, वही उस औरत को दे दिया, क्योंकि पर्स पे तो नहीं था, तो जो दिया उसका अपना पैसा था। ही कुड से दैट द वुमेन वाज अ सिंगल मदर, तो उसके ऐसा लगा, वो ऐसा कह सकता है कि वुमेन, द वुमेन वाज अ सिंगल मदर, के वो जो औरत थी एक सिंगल मदर है, उसके लिए मतलब बेटे के लिए वही एक मदर है जो उसका फीस का जुगाड़ करना था, इसलिए वो अपना पैसा दे दिया। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, टेक दीज, कि उस पैसे को लाओ, मतलब पैसे को दिया, वुमेन को दिया, दे के बता रहा है कि उसको ले जाओ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड सॉरी कहा उस औरत को, सॉरी कहा फॉर द इनकन्वीनियंस, जो अनकम्फर्ट होता है, जो असुविधा होता है, एंड उसके प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए उस औरत को सॉरी कहा। द वुमेन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ के चला जाना, तो वुमेन क्या कर दिया, पैसा मिला उसको तो वो छोड़ के चली गई। एंड पुलिस मैन, वो जो पुलिस मैन था, हेल्ड मतलब उसको पकड़ के रखा, उस मैन को हेल्ड द मैन, पकड़ के रखा, फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, और ज़्यादा, फर्दर मतलब और ज़्यादा लॉन्ग टाइम, क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ करने के लिए रख दिया। उसके बाद क्या है, द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, अब वो जो औरत थी वो मतलब बहुत खुश थी, बट वेन शी काउंटेड हर मनी, बट उसके बाद जब
काउंटेड हर मनी लेटर ऑन, मतलब लेटर ऑन होता है बाद में। व्हेन शी काउंटेड, जब उसने काउंट किया, अपना पैसा को गिना, जो उस आदमी ने दिया उसको गिनना स्टार्ट किया, तो गिन के क्या देखा, इट वॉज डबल्ड, कि यहाँ तो पैसा क्या है, डबल है, जो उसके पार्स में था उससे डबल पैसा है। शी वॉज शॉक्ड, तो उसको कुछ हैरान हो गई वो, कुछ अचानक उसको लगा, कुछ हैरान हो गई वो डबल देख के। वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे वाइल द वुमन, जब वो औरत वॉज गोइंग टू पे हर सन स्कूल फीस टुवर्ड्स द स्कूल, वॉज गोइंग मतलब जा रही थी वॉज गोइंग जा रही थी टू पे देने के लिए हर सन स्कूल फीस, उसके बेटे की स्कूल फीस देने के लिए, किस तरफ, टुवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ जा रही थी, टुवर्ड्स मतलब स्कूल की तरफ जा रही थी। शी नोटिस्ड, तब उस औरत ने देखी, दैट द सम स्किनी मैन वाज वॉकिंग बिहाइंड हर, स्किनी होता है एक पतला सा दुबला सा, मैन जो होता है एक आदमी, वाज वॉकिंग वो चल के आ रहा था, बिहाइंड हर उसकी पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे। उस औरत ने नोटिस की, उस औरत जब उसके बेटे की स्कूल फीस देने के लिए स्कूल जा रही थी, तो उसने नोटिस की कि एक आदमी, एक पतला दुबला सा आदमी उसके पीछे पीछे आ रही है। शी थॉट, तो उसने सोचा, मतलब उस औरत ने, मतलब ऐसा लगा औरत को, दैट ही मे रॉब हर के, हो सकता है उस आदमी उसको रब करना होता है लूटने के लिए आ रहा है, लूट के ले जाएगा। सो सो क्या किया, शी अप्रोच मतलब वो पहुंची, एक पुलिसमैन के पास, स्टैंडिंग जो खड़ा था, नियर बाय मतलब उसके पास, जो नियर बाई खड़ा था, पास खड़ा था, उसके पास पहुंची हुआ औरत। ही वॉज द सेम पुलिसमैन, जाके देखा, ही वॉज द सेम पुलिसमैन, ये तो पुलिसमैन तो वही है, ये पुलिसमैन वही है, हु जिसको शी टुक अलोंग टू इंक्वायर अबाउट हर पर्स, जिसको वो साथ ले गई थी उसके पार्स की इंक्वायरी के लिए, उसके पार्स की इंक्वायरी के लिए जिस पुलिसमैन को साथ ले गई थी, ये तो वही पुलिसमैन है, देखा। उसके बाद क्या हुआ, द वुमेन टोल्ड हिम, वुमेन ने उसको बताया, अबाउट द मैन फॉलोइंग हर, अबाउट द मैन उस आदमी के बारे में, फॉलोइंग हर जो उसको फॉलो कर रहा था, जो उसका पीछा कर रहा था। बट सडनली, बट अचानक से क्या हो गया, दे सो, उन्होंने देखा, उस औरत ने एंड पुलिसमैन ने देखा, दैट द मैन कलेप्सिंग, वो जो आदमी था पीछा कर रहा था, वो कलेप्स कर रहा है, वो गिर रहा है, मतलब वो कमज़ोर है तो गिर रहा है, ऐसा लगा उनको, देखा उन्होंने। तो दे रन एट हिम, तो वो दोनों दौड़ के आए, भाग के आए, एट हिम उसके पास, एंड सो, एंड देखा, दैट ही वाज द सेम मैन, देखा कि अरे ये आदमी तो सेम वही है, whom दे अरेस्टेड, जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था, ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले, फॉर स्टीलिंग ए पार्स, एक पार्स के चोरी करने में उनको अरेस्ट किया था, तो वही आदमी है। उसके बाद है उस पैराग्राफ में, ही लुक्ड वेरी वीक, तो उसको अब कैसा लग रहा है, वेरी वीक, बहुत दुर्बल, बहुत कमज़ोर लग रहा है, एंड द वुमन वाज कंफ्यूज, अब वो औरत कंफ्यूज हो गई, अरे यार पुलिसमैन भी वही है, एंड जो जिस आदमी को हमने मतलब अरेस्ट किया था, वो आदमी अब पीछे पीछे घूम रहा है। द पुलिसमैन सेड, अब वो पुलिसमैन कह रहा है, द वुमन मतलब कहा, पुलिसमैन ने उस औरत को कहा, ही डिडंट रिटर्न योर मनी, कि उस आदमी ने तुम्हारा मनी, तुम्हारा पैसा तुम्हें रिटर्न नहीं किया, तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं दिया। ही गेव, उसने दिया था, ही गेव यू, उसने दिया था तुमको, हिज मनी, उसके अपने मनी दिया था, दैट डे, उस दिन। ही वजेंट द थीफ, ही वजेंट मतलब वो नहीं था, थीफ मतलब वो चोर नहीं था, बट हियरिंग, बट सुन के, हियरिंग मतलब सुन के, अबाउट योर सन्स स्कूल फीस, तुम्हारे सन के, तुम्हारे बेटे के स्कूल फीस के बारे में सुन के, ही फेल्ट सैड, उसको दुख हुआ, एंड गेव यू, एंड दिया तुमको, हिज मनी, उसके अपने मनी, तुम जो स्कूल फीस कह रही थी, तो उससे सुन के उसको दुख हुआ, एंड अपने मनी तुमको दे दिया। लेटर बाद में, दे हेल्प द मैन स्टैंड अप, दे मतलब उन दोनों ने उस मैन को, वो तो गिर गया, कोलैप्स कर गया था, तो उसको स्टैंड अप करने में हेल्प किया उन दोनों ने। एंड द मैन टोल्ड, तब उस आदमी ने बताया, द मैन टोल्ड, उस आदमी ने बताया, द वुमन, आदमी को मतलब औरत को बताया, प्लीज़ गो अहेड मतलब चलो, सामने चलो, प्लीज़ जाओ, एंड पे योर सन स्कूल फीस, एंड जाके तुम्हारा सन के, तुम्हारा बेटे के जो स्कूल फीस है उसको दो, उसको दो। आई सो यू, मैंने तुमको देखा, उस आदमी ने औरत को कह रहा है कि मैंने तुमको देखा, एंड फॉलोड, एंड तुम्हारा पीछा किया, फॉलोड यू, तुम्हारा पीछा किया, टू बी श्योर, ये श्योर होने के लिए, दैट नो वन स्टील्स योर
सन स्कूल फीस, ताकि कोई भी तुम्हारा बेटे की स्कूल फीस जो है वो चोरी करके ना ले जाए, चोरी करके ना ले जाए, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। द वुमन वॉज स्पीचलेस। अब वो वुमन क्या, वो औरत जो स्पीचलेस हो गई, मतलब उसका बात ही बंद हो चुकी थी, कुछ मतलब उसके जबान में नहीं आ रहा था क्या कहे ये सुन के। मॉरल जो है, मॉरल वही है, लाइफ गिव्स यू, मतलब जीवन देता है, यू स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वो ऐसा मतलब एक अजीब सा एक्सपीरियंस देता है, जो स्ट्रेंज होता है, एक अजीब सा एक्सपीरियंस जो अनुभव देता है। लाइफ कभी कभी हमको ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस देता है जो हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की, कभी भी अनुभव नहीं की। समटाइम्स इट शॉक्स यू, समटाइम्स इट शॉक्स यू, मतलब ये हमको हैरान कर देता है, तुमको हैरान कर देता है। एंड समटाइम्स, एंड कभी कभी इट में सरप्राइज, ये ताज्जुब भी कर देता है। ये ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ देता है, कभी कभी हम देख के हैरान भी हो जाते, ताज्जुब भी हो जाते। वी एंड अप मेकिंग, एंड हम कभी कभी एंड अप कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, मेकिंग रॉन्ग जजमेंट्स और मिस्टेक्स इन आवर एंगर, डिस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। एंगर जो होता है जब हम गुस्से में कुछ करते हैं, गुस्सा, डिस्परेशन जो हताशा निराशा जो होता है, फ्रस्ट्रेशन भी वही होता है जो हताशा होता है, दुख होता है, मायूसी होता है, उसको एंगर, डिस्प्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब कहा जाता है। तो समटाइम्स वी एंड अप मेकिंग रॉन्ग जजमेंट्स, हम गलत तरीके से निर्णय ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं और मिस्टेक कर देते हैं इन आवर एंगर, गुस्से में और हमारे निराशा मायूसी में गलत निर्णय ले लेते हैं। हाउएवर, जहाँ तक व्हेन यू गेट अ सेकंड चांस, जब तुमको कोई सेकंड चांस मिले, करेक्ट योर मिस्टेक्स, तब क्या करो, अपने सही करो अपने मिस्टेक को, जो गलती तुमने की है उसको करेक्ट करो। अगर तुमको व्हेन यू गेट सेकंड चांस, जब तुमको सेकंड चांस मिले तो करेक्ट योर मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स जो गलती हुआ है उसको करेक्ट करो। एंड रिटर्न द फेवर, एंड फेवर को रिटर्न करो। रिटर्न करो मतलब बदला दे दो, फेवर को मतलब जो सहायता की है तो सहायता की रिटर्न करो, फेवर करो। बी काइंड, मतलब क्या बनो, काइंड बनो, दयालु बनो। एंड जेनरस मतलब दानवीर बनो, अच्छा बनो, काइंड हार्टेड बनो। लर्न टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो, कदर करना सीखो, तारीफ करना सीखो। किसी ने अगर आपके साथ व्हाट यू आर गिवन, जो तुमको दिया गया है, व्हाट यू आर गिवन मतलब जो तुमको दिया गया है, जो तुमके साथ, तुम्हारे साथ जो फेवर किया गया है, तुम्हारे साथ जो हेल्प किया गया है, उसका महत्व देना सीखो, उसका तारीफ करना सीखो। तो यही होता है लाइफ में, अगर किसी ने हमको कोई सहायता की है तो उसका अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छा एक मॉरल वैल्यूज़ हमको सिखाया है, मॉरल लेसन भी दिया गया है। तो स्टोरीज़ के थ्रू हम बहुत कुछ सीखे हैं। हमने मतलब हमारा बेसिक जो हमारा इम्पोर्टेंट कोशिश यही था कि जितने सारे रीडिंग को हम इम्प्रूव करने की कोशिश किए, रीडिंग करके आपको सुनाया, आप भी उसको रीडिंग करने की कोशिश करें एंड समझाने की जितना हो सके। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने की, एंड वर्ड बाय वर्ड भी। तो आप वर्ड को डीपली देखें कि कैसा वर्ड एंड सेंटेंस का मतलब उठाया जा सकता है, उसको मतलब बार बार पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो हम जब भी डालें तो आप मिस ना कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलें, थैंक यू।